A very good morning and Jai Hind 12th class students. Today I will continue your chapter 3rd, measurement of national income. So student, let us go, we start revision for previous video. So we have discussed phases of production, income and expenditure. There are three phases: production, income and expenditure. I hope it is clear to students. There are three phases: production, then after by the help of production generate income, then after spend in market, expenditure. Then your next topic was method of measurement of national income. There are three methods for measurement of national income, that is product method or value added method, income method and expenditure method. And we will discuss product method. Getting students, product method, or it is known as value added method. In product method, before the discuss of product method, problem of double counting. Double counting means when counting of more than one in a particular goods, value of particular goods. You can see counting the value of a commodity more than once in the measurement of national income is called double counting. इस double counting से avoid करने के लिए students, economist ने किसका suggestion दिया है? This is value added method. Value added method. और for the value added method, we have to use, there are two concepts: value of output and value added. So students, I hope it is clear to all of you. ये भी आप लोगों को मैंने बताया था. What do you mean by value of output? Value of output क्या होता है? कंपनी का या प्रोड्यूसर का टोटल आउटपुट जो उसने प्रोड्यूस किया है. और टोटल आउटपुट कहां जाता है बेटा? यू कैन सी वैल्यू ऑफ आउटपुट इज द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय ए फर्म इन एन अकाउंटिंग ईयर. एंड हाउ कैन इट कैलकुलेट? वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू फिजिकल आउटपुट मल्टीप्लाई बाय इट्स प्राइस. गेटिंग? टू थिंग्स थे इसमें. फर्स्ट थिंग्स की वैल्यू ऑफ आउटपुट इंटरमीडिएट गुड्स भी इसमें इंक्लूड होती हैं विच आर परचेज बाय द अदर फर्म. और सेकेंड थिंग्स थी द वैल्यू ऑफ कंट्रीब्यूशन मेड बाय द फर्म. उस फर्म का भी कंट्रीब्यूशन वैल्यू ऑफ आउटपुट में इंक्लूड होता है. इट इज क्लियर टू स्टूडेंट्स? आई होप इट इज क्लियर. आप लोगों ने रिवाइज किया होगा. देन एक और स्टूडेंट्स यहां पर देखिए, टोटल आउटपुट कहां जाएगा? सेल हो जाएगा. सेल्स कहां पे होती है? आइदर इज डोमेस्टिक सेल्स और अदर कंट्री ओपन इकोनॉमी है तो एक्सपोर्ट भी होता है. तो टोटल सेल इज इक्वल टू डिवाइडेड बाय डोमेस्टिक सेल्स प्लस export. Getting? So now your value of output is equal to sale which are divided already, domestic sales and export, plus change in stock of inventories. मैंने आप लोगों को बताया था कि कभी कभी क्या होता है कि जितना प्रोडक्शन होता है उससे ज्यादा भी सेल हो सकता है और उससे कम भी होता है. अगर ज्यादा होता है तो इट मींस उसने इन्वेंट्रीज से, स्टॉक से ले लिया है, और अगर कम होता है तो उसने स्टॉक में ऐड कर दिया है. तो वी हैव टू यूज वैल्यू फॉर द कैलकुलेट ऑफ वैल्यू ऑफ आउटपुट is equal to sales plus change in stock, and change in stock, closing stock at the end of year and minus opening stock at the beginning of year. So your value of output is equal to sales plus closing stock minus opening stock. This is the formula of value of output. When you are able to clear value of output, then we can easily understand value added, which is very important, gross value added. Getting student? And by the help of gross value added, we can easily calculate GDP MP, gross domestic product at a market price, because gross value added is a value of gross output of the firm minus intermediate consumption. पहले क्या निकालना है आपको? कंपनी का टोटल वैल्यू ऑफ आउटपुट. और वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे निकालेंगे स्टूडेंट? वैल्यू ऑफ आउटपुट निकलेगा, टोटल हमें सेल्स देखनी होगी जो कहां पे हुई होंगी? डोमेस्टिक सेल्स प्लस अदर कंट्री को एक्सपोर्ट, और फिर उसमें क्या ऐड करेंगे? प्लस चेंज इन स्टॉक. देन आफ्टर आपने क्या कैलकुलेट कर लिया इजिली? ग्रोस वैल्यू ऑफ आउटपुट. और अगर स्टूडेंट्स ग्रोस वैल्यू ऑफ आउटपुट में से हम माइनस कर देते हैं इंटरमीडिएट कंजप्शन, और यू कैन से इनपुट परचेज फ्रॉम अदर फर्म, यानी उस कंपनी ने जो रॉ मटेरियल परचेज किया अदर फर्म से, उसको माइनस करती वैल्यू ऑफ आउटपुट कन्वर्ट हो जाएगा ग्रोस वैल्यू एडिड में. आई होप इट इज क्लियर टू स्टूडेंट्स. ग्रोस वैल्यू एडिड ऑफ ए फर्म इज इक्वल टू क्या होता है? वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन माइनस वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स. मैंने आपको ये एग्जांपल भी बताया था. तीन फर्में ले रखे थे यहाँ पर: फार्मर, थ्रेड मैन्युफैक्चरर, क्लॉथ मिल और रेडीमेड गारमेंट्स. गेटिंग?
प्रोडक्शन के स्टेज, फार्मर ने पहले कॉटन प्रोड्यूस किया, कितनी वैल्यू का 1000, ये उसका टोटल आउटपुट हुआ। वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजप्शन, उसने किसी से कोई परचेज नहीं किया, तो 1000 माइनस 0 इज इक्वल टू 1000 इज ग्रोस वैल्यू एडेड। सेकेंड स्टेज थ्रेड मैन्युफैक्चरिंग, उसने थ्रेड बनाई, कितनी वैल्यू के बनाई 1500, इट इज ए ग्रोस आउटपुट, उसका ग्रोस आउटपुट हुआ। देन आफ्टर उसने दूसरी फर्म से क्या परचेज किया, फार्मर से परचेज किया था 1000, देन आफ्टर 1500 माइनस 1000 इज इक्वल टू 500 वैल्यू एडेड। किसकी वैल्यू एड है ये, थ्रेड मैन्युफैक्चरर की। नेक्स्ट स्टेज में पहुंचा आप लोगों का क्लोथ, क्लोथ कितने का उसने परचेज, उसकी क्लोथ की वैल्यू थी 1900, जिसमें उसने अदर फर्म से यानी थ्रेड मैन्युफैक्चरर से 1500 का प्रोडक्ट परचेज किया। अगर इसमें से उसको डिडक्ट कर देते हैं तो 400 ये वैल्यू होगी थ्रेड मैन्युफैक्चरर की। देखिए सेम क्लोथ मैन्युफैक्चरर ने गेटिंग। देन आफ्टर रेडीमेड गारमेंट्स ने शर्ट बनाई, कितने की 2500 की वैल्यू की शर्ट बनाई, ये उसका आउटपुट हुआ। अब टोटल उसकी मेहनत नहीं है इसमें, क्योंकि उसने क्या किया 1900 उसने क्लोथ परचेज किया था, तो उसकी वैल्यू ऐड करने के लिए क्या करेंगे हम 2500 माइनस 1900 डिडक्ट कर देंगे, तो 600 वैल्यू एडेड किसका हुआ, रेडीमेड गारमेंट्स की। और सारी कंपनियों की स्टूडेंट्स अगर हम वैल्यू एडेड ही लेते हैं सारी कंपनियों की, तो 2500 विच इज द वैल्यू ऑफ द शर्ट। गेटिंग। तो इन जीडीपी वी विल काउंट ओनली वैल्यू एडेड। वैल्यू एडेड मीन्स हर एक कंपनी का जो उसने ऐड किया है। और वैल्यू एडेड कैसे कैलकुलेट करते हैं, वैल्यू एडेड कैलकुलेट करने के लिए फर्मों का आउटपुट माइनस कर देंगे उसमें से इंटरमीडिएट गुड्स। ग्रोस वैल्यू एडेड इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ ग्रोस आउटपुट ऑफ द फर्म माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। आई होप इट इज क्लियर टू स्टूडेंट्स, ये मैंने आप लोगों को रिवाइज कराया था। देन आफ्टर यू कैन सी, यहां पर एग्जाम्पल भी है, when we deduct the total value of intermediate consumption by all the firm of the countries, पूरी कंट्री की बात करें, वो तो आपको एक एग्जांपल दिया था मैंने, when we deduct the total value of intermediate consumption by all the firm the country's total value of gross output, we get country's value of gross value added. So you can see here is formula, country's gross value added is equal to टोटल वैल्यू ऑफ ग्रोस आउटपुट, कंट्री का टोटल आउटपुट लिया और माइनस क्या कर दिया, टोटल वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजप्शन विच आर परचेज बाय द अदर फर्म। आई होप इट इज क्लियर टू स्टूडेंट्स। ये आपका एग्जांपल है, 2500 की शर्ट थी, 6900 माइनस 4400, 6900 क्या था, ग्रोस आउटपुट, सारी कंपनियों का ग्रोस आउटपुट। यू कैन सी हियर 6009 आउटपुट, ग्रोस आउटपुट, और वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजप्शन 4400। तो ऑटोमेटिकली अगर आप इसमें से माइनस कर दोगे तो हियर इज 2500 इज ए जीडीपी वैल्यू ऑफ शर्ट। तो इट इज क्लियर टू स्टूडेंट। So student, after the revision of previous video, now I am going to start your new topic, meaning of intermediate goods and intermediate consumption. Intermediate goods and intermediate consumption are normally same things. You can see good which are used for further production, जो production process में use होती है, are known as intermediate goods. अब देखो intermediate goods यहाँ प्राइमरी सेक्टर में फार्मर्स यूज करता है, सेकेंडरी सेक्टर में मैन्युफैक्चरर यूज करता है। फॉर एग्जांपल रॉ मटेरियल, फ्यूल, कोयल, सीड्स, फर्टिलाइजर, डीजल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, ऑयल एक्सेट्रा। तो दीज थिंग्स आर इंटरमीडिएट गुड्स। यूज ऑफ सच इंटरमीडिएट थिंग्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज is called the intermediate consumption, and expenditure on them is known as intermediate consumption expenditure. So it is clear to students, intermediate goods, which goods used for further production are known as intermediate goods. Example like coal, fuel, raw material, seeds, fertilizer, diesel, pesticides etc. एंड इन्हीं सबका यूज करना क्या हो जाएगा, यूज ऑफ सच इंटरमीडिएट थिंग्स और प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज कॉल्ड इंटरमीडिएट कंजप्शन, एंड एक्सपेंडिचर ऑन देम इंटरमीडिएट कंजप्शन एक्सपेंडिचर। और स्टूडेंट्स आप लोग एक और चीज ध्यान रखो, जब भी आपको वैल्यू एडेड निकालना होता है तो क्या करते हैं हम, वैल्यू ऑफ आउटपुट में से इंटरमीडिएट कंजप्शन को डिडक्ट करते हैं। गेटिंग। और इंटरमीडिएट कंजप्शन विच आर परचेज बाय अदर फर्म। फॉर एग्जांपल मैंने आप लोगों को कल भी बताया था, सपोज दैट शुगर मिल है, शुगर मिल में शुगर प्रोड्यूस हुआ, शुगर इज ए वैल्यू ऑफ आउटपुट, और इंटरमीडिएट कंजप्शन जो उसने अदर फर्मों से परचेज किया, जैसे फार्मर से परचेज किया शुगर कैन। गेटिंग।
वन मोर थिंग स्टूडेंट्स, यहां पर आप लोग देखिए, हियर वन थिंग शुड आल्सो बी नोटेड दैट द परचेज ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स, अब इंटरमीडिएट गुड्स परचेज कर रहे हैं, मे बी फ्रॉम डोमेस्टिक फर्म एज वेल एज द फॉरेन फर्म। ऐसा तो नहीं है कि केवल वो डोमेस्टिक फर्म से, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, वो इंटरमीडिएट गुड्स को अदर फर्म से, अदर कंट्री से भी परचेज करते हैं, जिसको आप क्या बोलते हो, इंपोर्ट करना। आई होप इट इज क्लियर टू स्टूडेंट। यानी दोबारा सुनिए, बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, वो रॉ मटेरियल आपकी कंट्री से भी परचेज कर सकती हैं, यानी डोमेस्टिक कंजप्शन भी कर सकती हैं, और प्लस अदर कंट्री से इंपोर्ट भी कर सकती हैं। तो उन लोगों का टोटल इंटरमीडिएट गुड्स क्या हो जाएगा, यू कैन सी हियर वन थिंग शुड आल्सो बी नोटेड दैट द परचेज ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स मे बी फ्रॉम डोमेस्टिक फर्म्स एज वेल एज फॉरेन फर्म्स। मैंने इसको हाईलाइट किया है। इन द केस ऑफ एन ओपन इकोनॉमी, हैंस द वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स, अब इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू क्या बन जाएगी, इज इक्वल टू परचेज ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स फ्रॉम डोमेस्टिक फर्म। एक तो ये कि उस कंपनी ने डोमेस्टिक फर्म से कितना इंटरमीडिएट गुड्स परचेज किया, प्लस इंपोर्ट ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स। गेटिंग? तो इट इज क्लियर टू स्टूडेंट्स। ये टॉपिक क्या था आपका, मीनिंग ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स एंड इंटरमीडिएट कंजप्शन। आई एम रिपीटेड अगेन, इंटरमीडिएट गुड्स और इंटरमीडिएट कंजप्शन क्या होता है, इंटरमीडिएट गुड्स आर दोज गुड्स विच आर यूज इन प्रोडक्शन प्रोसेस, और इंटरमीडिएट कंजप्शन क्या हो जाएगा, उसी गुड्स का कंज्यूम करना। गेटिंग? और वन मोर थिंग्स, इंटरमीडिएट गुड्स जो होती हैं वो आपकी डोमेस्टिक फर्मों से भी हम परचेज कर सकते हैं, और उसको अदर कंट्री से इंपोर्ट भी कर सकते हैं। गेटिंग? पढ़ा क्यों है स्टूडेंट हमने इंटरमीडिएट गुड और इंटरमीडिएट कंजप्शन, जब आप लोग वैल्यू एडिड कैलकुलेट कर रहे होंगे, लिसन केयरफुली, जब आप लोग वैल्यू एडिड कैलकुलेट कर रहे होंगे तो हमें पहले कंपनी का वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालना होगा, और वैल्यू ऑफ आउटपुट में से माइनस करेंगे ऑफ आप इंटरमीडिएट कंजप्शन और इंटरमीडिएट गुड्स, और परचेज ऑफ अदर फर्म आर सेम थिंग, तीनों चीजें एक हैं, इंटरमीडिएट गुड्स, इंटरमीडिएट कंजप्शन और परचेज ऑफ अदर फर्म्स, उसको माइनस करते क्या बन जाएगा आपका ग्रोस वैल्यू एडिड, और ग्रोस वैल्यू एडिड इट इज नोन एज GDP. Getting students? Yes. I hope it is clear to students. Your next topic is inventories and value added. अब देखो inventories का value added पे क्या इफेक्ट पड़ता है। inventories क्या होते हैं आप लोगों के स्टूडेंट्स, inventories होता है बेटा जो एक तरह से वेयर हाउसिंग होते हैं कंपनियों के, उस पे वैल्यू एडिड का क्या इफेक्ट पड़ता है। इन्वेंट्रीज बढ़ते हैं तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, इन्वेंट्रीज कम होते हैं तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। यू कैन सी हियर, नाउ लेट अस सी हाउ द इन्वेंट्रीज अफेक्ट द वैल्यू एडिड बाय ए फर्म। ए फर्म में बी एबल और मे नॉट बी एबल, मैंने बताया था कोई भी फर्म एबल हो सकती है और नहीं भी अपना एंटायर आउटपुट को सेल करने के लिए। यू कैन सी देन आफ्टर आई विल एक्सप्लेन। ए फर्म में बी एबल और मे नॉट बी एबल सेल इट्स टोटल आउटपुट, जितना उसने एक ईयर में बनाया, अकाउंटिंग ईयर में फर्म ने प्रोडक्शन किया, व्हाट इज अकाउंटिंग ईयर 1 अप्रैल टू 31 मार्च, तो फर्म एबल भी है और एबल नहीं भी होती कि वो अपने सारे आउटपुट को सेल कर दे। इफ ए फर्म इज अनेबल टू सेल इट्स टोटल आउटपुट इन ए ईयर, क्या होगा अगर उसका सारा आउटपुट सेल नहीं होगा, देन द रिमाइंडर क्वांटिटी ऑफ आउटपुट becomes the unsold stock of the goods. Getting? It is clear to students. You can see again, if a firm is unable to sell its total output in a year, सारा वो प्रोडक्ट सेल नहीं कर पा रही, then the remainder quantity of output become the unsold stock. क्या बन जाएगा वो unsold stock of the goods at the end of the year. Contrary to it, on the other hand, you can say it is also possible, क्या possible है, that the sale of a firm, फर्म की सेल मे बी मोर देन द आउटपुट, जितना उसने प्रोडक्शन किया। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है बेटा उसने 100 यूनिट प्रोड्यूस की और मार्केट में सेल कर दी 110, ऐसा कैसे पॉसिबल होगा, वो लास्ट ईयर के स्टॉक को सेल कर देगा। कभी कभी इट इज डिपेंड ऑन द मार्केट, मार्केट में जितना डिमांड होती है उसी पर डिपेंड होता है। मे बी मोर देन द आउटपुट इट हैज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द करंट ईयर, इन दिस केस द फर्म सेल सम ऑफ द क्वांटिटी फ्रॉम द प्रीवियस स्टॉक। इस सिचुएशन में क्या हो रहा है कि फर्म ने कुछ क्वांटिटी कहां से सेल कर दी, प्रीवियस स्टॉक से, तो ऑटोमेटिकली आप देखोगे कि इन्वेंट्रीज वैल्यू एडिड को बहुत इफेक्ट कर रही है, क्योंकि इन्वेंट्री इंक्रीज भी हो सकती है। अगर इन्वेंट्री इंक्रीज हो रही है, अब स्टूडेंट ध्यान लगा के सोचो, इन्वेंट्री इंक्रीज हो रही होंगी तो क्या हो रहा होगा, इट मीन्स हमारा प्रोडक्ट सारा नहीं बिक पाया और हमने उसको इन्वेंट्रीज में रख दिया है, तो वो इसी ईयर की जीडीपी है वो काउंट होगा। Getting? Another thing, if you can say on the other hand, अगर इन्वेंट्रीज डिक्रीज हो रही होंगी, वेयर हाउसिंग डिक्रीज हो रहे होंगे, इट मीन्स आपने इस साल के आउटपुट से ज्यादा सेल कर दिया। अगर आपने ज्यादा सेल किया होगा तो इस सिचुएशन में क्या होगा कि आपने किसी दूसरे ईयर का यानी लास्ट ईयर का या प्रीवियस ईयर का स्टॉक भी सेल कर दिया, जो कि इस साल की जीडीपी में वो काउंट नहीं होगा।
तो आप लोग क्या ले लोगे, नॉर्मली हम चेंज इन स्टॉक लेते हैं, तो चेंज इन स्टॉक पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। यू कैन सी इट इज क्लियर टू स्टूडेंट। दस द स्टॉक ऑफ अनसोल्ड फिनिश गुड, सेमी फिनिश गुड, यानी जरूरी नहीं आप लोगों का प्रोडक्ट ही होगा, रॉ मटेरियल भी वो कंपनियां रखती हैं। स्टॉक ऑफ अनसोल्ड फिनिश गुड, सेमी फिनिश गुड एंड रॉ मटेरियल लेइंग विद द फर्म इज कॉल्ड इन्वेंट्रीज। गेटिंग? वेयर हाउसिंग और इन्वेंट्रीज में यही डिफरेंस है। वेयर हाउसिंग में केवल फाइनल प्रोडक्ट रखा रहता है, बट इन्वेंट्रीज उसको बोलते हैं जिसमें यहाँ पर आपका अनसोल्ड फिनिश गुड्स हो, सेमी फिनिश गुड्स हो और रॉ मटेरियल लेइंग विद द फर्म इज कॉल्ड इन्वेंट्रीज। दस इन्वेंट्रीज में इंक्रीज। गेटिंग स्टूडेंट? अगर इन्वेंट्रीज इंक्रीज होती हैं तो दैट इज एक्यूमुलेटेड। Getting? It is a very important. What do you mean by accumulated? When inventories increase, में increase, और increase means क्या है कि फर्म का सारा आउटपुट सेल नहीं हुआ, उसने कुछ प्रोडक्ट रिमाइंडर रखा है जो जिससे उसका स्टॉक इंक्रीज हुआ है। गेटिंग? देन 10 इन्वेंट्रीज में इंक्रीज और एक्यूमुलेटेड और डिक्रीज डी एक्यूमुलेटेड। डिक्रीज डी एक्यूमुलेटेड क्या होता है कि इट मीन्स उसने इस साल लास्ट ईयर के जो स्टॉक है उसका डी एक्यूमुलेट हो गया, यानी जितना था उससे भी कम हो गया। तो कम मीन्स क्या है कि इस साल इतनी डिमांड बढ़ी कि जितना इस साल हमने बनाया वो तो सारा सेल हो ही गया, प्लस पिछले साल के रखे हुए स्टॉक में से भी कुछ पोर्शन सेल हो गया। आई होप इट इज क्लियर टू स्टूडेंट्स। सो चेंज इन इन्वेंट्रीज, इट इज वेरी सिंपल, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ इन्वेंट्रीज माइनस ओपनिंग स्टॉक ऑफ इन्वेंट्रीज। चेंज ऑफ इन्वेंट्रीज डिपेंड्स ऑन whether the sale of the firm during the year is high or lower। यानी इन्वेंट्रीज किस पे वैल्यू एडिड किस पे डिपेंड होता है? इन्वेंट्रीज पर, कि इस साल में सेल ऑफ द फर्म ड्यूरिंग द ईयर इज हायर है, लोअर देन इट्स आउटपुट, या तो हायर। सो आई होप इट इज क्लियर टू स्टूडेंट्स व्हाट इज द रोल ऑफ इन्वेंट्रीज इन इकोनॉमिक्स। Your next topic is relationship between change in inventories and the value added of a firm। यानी क्या रिलेशनशिप है किस किस के बीच में? इन्वेंट्रीज के और वैल्यू एडेड के। मैंने आपको थोड़ा सा बताने की कोशिश की थी। देयर इज ए वेरी क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन द चेंज इन इन्वेंट्रीज एंड द वैल्यू एडेड ऑफ ए फर्म। तो नॉर्मली आप फॉर्मूला यूज करोगे, वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या होगा स्टूडेंट्स? पहले वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू सेल्स प्लस चेंज इन इन्वेंट्रीज। यानी सेल्स को कितने पार्ट में आप डिवाइड कर सकते हो? यू कैन सी, मैं फॉर्मूले को ओपन कर रहा हूं। सेल्स इट इज टू पार्ट, इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, डोमेस्टिक सेल्स एज वेल एज एक्सपोर्ट। एंड चेंज इन इन्वेंट्रीज it is divided also two part, closing stock minus opening stock। you can see here value of output is equal to sales plus closing stock minus opening stock। you are aware from for this formula। it means the value of output increase or decrease with increase or decrease in inventories। यानी value of output तो इससे डायरेक्ट रिलेट हो रहा है ना, because if inventories increase then output increase, inventories decrease then output, it is also dependent to each other। now if we are talking about value added कैसे कैलकुलेट करते हैं? वैल्यू ऑफ आउटपुट में इन्वेंट्रीज ऑलरेडी इंक्लूड है, माइनस वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स, और यू कैन से विच परचेज ऑफ अदर फर्म। गेटिंग? और यू कैन से सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक और चेंज इन इन्वेंट्रीज। ये इतना मिला के क्या बना स्टूडेंट्स? सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। अभी आप ऊपर पढ़ के आए हो, दिस इज वैल्यू ऑफ आउटपुट। यू कैन सी हियर वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू सेल्स प्लस चेंज इन इन्वेंट्रीज। सो हियर इज सेल्स प्लस चेंज इन इन्वेंट्रीज, और इसमें से जैसे ही आपने माइनस किया इंटरमीडिएट गुड्स तो ये तुरंत क्या बन गया आपका? वैल्यू एडेड। आई होप इट इज क्लियर टू स्टूडेंट्स। यू कैन सी अगेन सेल्स प्लस चेंज इन इन्वेंट्रीज, ये हो गया वैल्यू ऑफ आउटपुट, और वैल्यू ऑफ आउटपुट में से हमने माइनस किया इंटरमीडिएट गुड्स, तो ये हो गया आपका वैल्यू एडेड। इसको आप एक और तरीके से लिख सकते हो, यू कैन सी सेल्स को भी टू पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है, किसमें? डोमेस्टिक सेल्स प्लस एक्सपोर्ट मींस परचेज बाय द अदर कंट्री। तो सेल्स प्लस चेंज इन इन्वेंट्रीज को किसमें लिखोगे आप? क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, और इसी में से अगर आपने कर दिया माइनस इंटरमीडिएट गुड्स, तो ये किसका फॉर्मूला बना स्टूडेंट्स? इंटरमीडिएट गुड माइनस करते ही क्या बन गया? वैल्यू ऑफ आउटपुट। देखो यहां से इधर तो ये वैल्यू ऑफ आउटपुट है, बिकॉज इट इज सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, और इसमें से जैसे ही आपने इंटरमीडिएट गुड्स माइनस कर दिया तो ये तुरंत बन गया वैल्यू एडेड। अब देखो वैल्यू एडेड का फॉर्मूला क्या बनेगा? वैल्यू एडेड इज इक्वल टू डोमेस्टिक सेल्स प्लस एक्सपोर्ट प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट गुड्स इज इक्वल टू वैल्यू एडेड। आई होप इट इज क्लियर टू स्टूडेंट्स। वेरी क्लियर होगा बेटा।
नेक्स्ट योर टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसके लिए आप लोग तब से पढ़ते आ रहे हो, एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम थ्रू वैल्यू एडेड, यानी हाउ कैन एस्टिमेट नेशनल इनकम बाय द हेल्प ऑफ वैल्यू एडेड। अब देखो आप कैसे नेशनल इनकम, अभी तक मैंने आप लोगों को क्या काउंट करना बताया, वैल्यू एडेड। वैल्यू एडेड क्या होता है, जीडीपी, और जीडीपी से नेशनल इनकम पे जाना आप लोगों को सेकेंड चैप्टर में सिखाया गया है। हाउ कैन रीच, व्हाट डू यू मीन बाय नेशनल इनकम, एनएनपीएफसी। रियल में जीडीपी नहीं होती नेशनल इनकम, नेशनल इनकम इज एनएनपीएफसी, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम net national product at factor cost, this is NNPFC. I will talk, listen, देखो ये फिर से रिलेशनशिप दे रखा है। सबसे पहले वैल्यू ऑफ फर्म, ग्रोस आउटपुट कैसे निकालोगे, ग्रोस आउटपुट इज इक्वल टू सिंपल फिजिकल आउटपुट इनटू प्राइस, और वैल्यू ऑफ फर्म इज आउटपुट इज इक्वल टू सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। आई होप अवेयर होंगे आप, सेल्स भी डिवाइडेड है किस किस में, डोमेस्टिक सेल्स प्लस एक्सपोर्ट, और चेंज इन स्टॉक किस किस में, इसके ब्रैकेट में क्या लिख सकता हूं मैं, देखो सेल्स के ब्रैकेट में लिखूंगा मैं डोमेस्टिक सेल्स प्लस एक्सपोर्ट, और चेंज इन स्टॉक के ब्रैकेट में लिखूंगा मैं क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। यू कैन सी हियर ग्रोस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ ग्रोस आउटपुट, यानी आप वैल्यू एडेड निकाल रहे हैं। आप वैल्यू एडेड के लिए पहले आपने क्या निकालना, वैल्यू ऑफ ग्रोस आउटपुट, और माइनस कर दिया उसमें से इंटरमीडिएट गुड्स, गेटिंग, और यू कैन से ग्रोस वैल्यू एडेड, बेटा यही जीडीपी है, मैं बार बार बता रहा हूं, ग्रोस वैल्यू एडेड इज जीडीपी एमपी इज इक्वल टू सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। और खोलें, अभी बताया था मैंने आपको कैसे खोलोगे, सेल्स ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, डोमेस्टिक सेल्स प्लस आपकी आवाज एक्सपोर्ट प्लस चेंज इन स्टॉक के ब्रैकेट में क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। तो दिस इज ए ग्रोस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, और यू कैन से जीडीपी। नाउ यू कैन सी बाय समिंग अप द वैल्यू एडेड बाय ऑल, ये एक फर्म का था, और उसी एक फर्म का आप अप्लाई कर सकते हो पूरी कंट्री पे। यू कैन सी बाय समिंग अप द वैल्यू एडेड बाय ऑल द फर्म्स in a country we get the various aggregates related to national product. For instance, the sum of the gross value added by all the firms, कंट्री में जितनी भी फर्म है सबका पहले क्या लेना होगा आपको, ग्रोस वैल्यू एडेड। और ग्रोस वैल्यू एडेड कैसे लोगे, पहले कंट्री की फर्मों का आउटपुट और माइनस कर दोगे इंटरमीडिएट कंजप्शन। इज द डोमेस्टिक इकोनॉमी इन ए ईयर इज कॉल्ड ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, योर जीडीपी। इट इज क्लियर टू स्टूडेंट? यस, various national income aggregates measured by value added method are given below. अब देखो मैंने उसका आप लोगों को एनएनपीएफसी पे पहुंचाऊंगा आपको, कैसे एनएनपीएफसी मींस नेशनल इनकम। सबसे पहले जीडीपीएमपी कैलकुलेट करोगे, सिंपल डेफिनेशन जीडीपीएमपी की, सम ऑफ द ग्रोस वैल्यू एडेड बाय ऑल द फर्म, यानी सारी फर्मों का वैल्यू एडेड बाय द ओल्ड फर्म इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री। क्योंकि डोमेस्टिक टेरिटरी क्यों, बिकॉज एयर इज डी फॉर डोमेस्टिक। क्लियर, ये आपको पता है कि डोमेस्टिक से नेशनल बनाने के लिए आप बाद में इसमें क्या ऐड कर दोगे, एनएफआईए। और जीडीपी एमपी इज इक्वल टू सेल्स, सेल्स कौन सी, मैंने कम से कम भी स्टूडेंट्स 8, 9, 10 बार बोल दिया होगा। सेल्स कितनी पार्ट में डिवाइड होगी, डोमेस्टिक सेल्स प्लस एक्सपोर्ट, देन प्लस चेंज इन स्टॉक, चेंज इन स्टॉक का क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, और माइनस कर दिया आपने इंटरमीडिएट कंजप्शन, गेटिंग। और यहां पर एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, क्योंकि सेल्स का यहां पर दे रखा है उसने, एक्सपोर्ट को प्लस करोगे और माइनस इंपोर्ट, दिस इज जीडीपी एमपी। यू कैन सी अगेन, पहले सेल्स ले लिया, एक्सपोर्ट भी यहां पे इंक्लूड हो गई, गेटिंग, डोमेस्टिक सेल्स एक्सपोर्ट यहां पर एक ही बार आएगा, या तो यहां पर लोगे आप यहां पर लोगे, प्लस चेंज इन स्टॉक दिस इज क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, और माइनस कर दोगे इंटरमीडिएट कंजप्शन, दिस इज वैल्यू एडेड। और वैल्यू एडेड इट इज नोन एज ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी जीडीपीएमपी। और स्टूडेंट्स आई होप जीडीपीएमपी से आप एनएनपीएफसी पे इजीली चले जाओगे। वो कैसे, जीडीपीएमपी के बाद आपने एनडीपीएमपी बनाना है। एनडीपीएमपी में जी से एन पे चेंज होना है, ग्रोस से नेट का डिफरेंस क्या होता है, डेप्रिसिएशन, सेकंड चैप्टर में आपने यही सीखा, इज इक्वल टू, देखो एनडीपीएमपी जीडीपीएमपी माइनस कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल दैट इज नोन एज डेप्रिसिएशन। और आपको पता है डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू ग्रोस कैपिटल फॉर्मेशन माइनस नेट कैपिटल फॉर्मेशन। यू कैन इजिली कैलकुलेट एनडीपीएमपी, गेटिंग। और एनडीपीएमपी से आप एनएनपीएमपी निकाल लोगे, और फिर एनएनपीएमपी से एनएनपीएफसी। वो कैसे, यू कैन सी एनडीपीएफसी, एनडीपीएफसी इज इक्वल टू एनडीपीएमपी माइनस एनआईटी। एनआईटी ने क्या कर दिया, एनआईटी ने एमपी को एफसी में कन्वर्ट कर दिया, बिकॉज इट इज मार्केट प्राइस और इट इज फैक्टर कॉस्ट। और एनआईटी का फॉर्मूला क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, ये आप लोगों ने पढ़ रखा है सेकंड चैप्टर में। देन विल
NNPFC, और NNPFC इज नोन एज नेशनल इनकम. सो स्टूडेंट, नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के लिए NFIA यानी नेट फैक्टर इनकम अब्रॉड क्या करोगे आप, NDPFC में प्लस कर दोगे NFIA. NDPFC नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट, और NNPFC नेट नेशनल. तो डोमेस्टिक को नेशनल बनाने के लिए हम NFIA प्लस करेंगे, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, जिसका फॉर्मूला होता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज इक्वल टू फीफा माइनस फीटा, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड. आई होप इट इज क्लियर टू स्टूडेंट्स. मैंने आपको आज बताया कि कैसे हम वैल्यू एडिड मेथड से नेशनल इनकम या GDPMP या NDPMP या NDPFC कैसे कैलकुलेट करेंगे. पहले GDPMP कैलकुलेट करोगे और फिर GDPMP से आप कैसे भी दूसरी कंसेप्ट पे जा सकते हो. सो नोट सम ऑफ द वैल्यू एडेड बाय ऑल द सेक्टर इन द डोमेस्टिक. बेटा एक चीज और है, देखो कभी कभी वो घुमाने के लिए आपको ये और दे सकता है, सम ऑफ द वैल्यू एडेड बाय ऑल द सेक्टर इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री as टू डोमेस्टिक प्रोडक्ट. हैंस कितने सेक्टर होते हैं कंट्री में, 3 सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टेरिटरी सेक्टर. अगर उन सारे फर्मों का, उन सारे सेक्टर का आपने वैल्यू एडेड ले लिया तो तब भी आप इजीली GDPMP कैलकुलेट कर सकते हैं. गेटिंग, वहां पे सेल्स वगैरह की आपको रिक्वायरमेंट ही नहीं होगी, सेल्स की या चेंज इन स्टॉक क्लोजिंग की, क्योंकि उसको डाटा कैसे गिवन होगा, ग्रोस वैल्यू एडेड दे दिया बाय द प्राइमरी सेक्टर प्लस ग्रोस वैल्यू एडेड बाय सेकेंडरी सेक्टर प्लस ग्रोस वैल्यू एडेड बाय टेरिटरी सेक्टर, और इन तीनों का समेशन कर दिया. मैंने आपको बताया था GDP इज द फाइनल वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन अ सेक्टर ऑफ द कंट्री ड्यूरिंग अकाउंटिंग ईयर. तो GDPMP में प्राइमरी सेक्टर का जितना प्रोडक्ट हुआ है प्लस सेकेंडरी सेक्टर का और प्लस टेरिटरी सेक्टर का, तो ऐसे भी तो आप कैलकुलेट कर लोगे. इट इज डिपेंड ऑन डाटा, उसने डाटा कैसे गिवन किया है, और आप इसी फॉर्मूले को ऐसे लिख सकते हो. देखो यहां पर तो उसने दिया ग्रोस वैल्यू एडेड बाय प्राइमरी सेक्टर, अगर उसने वैल्यू एडेड नहीं दिया तो क्या गिवन होगा, वैल्यू ऑफ आउटपुट, और वैल्यू ऑफ आउटपुट से वैल्यू एडेड बनाने के लिए क्या करोगे आप, माइनस परचेज ऑफ इंटरमीडिएट फर्म्स, इंटरमीडिएट कंजप्शन. ये उसने डाटा दे रखा होगा, आपको पहले डाटा देखना होगा, देन आफ्टर यू कैन इजिली सोल्व द क्वेश्चन. यू कैन सी हियर GDPMP is equal to value of gross output of the primary sector, माइनस कर दिया intermediate consumption of the primary sector, प्लस वैल्यू ऑफ ग्रोस आउटपुट ऑफ सेकेंडरी सेक्टर, अगेन माइनस कर दिया इंटरमीडिएट कंजप्शन ऑफ द सेकेंडरी सेक्टर, प्लस वैल्यू ऑफ ग्रोस आउटपुट ऑफ टेरिटरी सेक्टर, माइनस कर दिया इंटरमीडिएट कंजप्शन ऑफ द टेरिटरी सेक्टर. सो स्टूडेंट यू कैन से सारी तीनों सेक्टरों के फर्मों का आउटपुट, और अगर वैल्यू ऑफ आउटपुट दे रखी, अगर वैल्यू ऑफ एडिड दे रखा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, उसको ही समीशन कर दो जैसे यहाँ पे दिया है, और अगर उसने वैल्यू ऑफ आउटपुट दे रखा है तो वी हैव टू माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन ऑफ ईच सेक्टर बाय द कैलकुलेट ऑफ GDPMP. आई होप स्टूडेंट्स क्लियर होगा ये. और एक और टॉपिक बचा है, मैं इसको भी क्लियर कर देता हूं अभी आप लोगों को, देन आफ्टर इसके हम न्यूमेरिकल करेंगे. टॉपिक क्या है, प्रिकॉशन ऑफ वैल्यू एडेड मेथड. जब आप वैल्यू एडेड मेथड कैलकुलेट कर रहे होंगे, इसका क्या प्रिकॉशन होगा. यस स्टूडेंट्स, दिस इज योर लास्ट टॉपिक फॉर रिलेटेड टू वैल्यू एडेड. टॉपिक क्या है, प्रिकॉशन ऑफ वैल्यू एडेड मेथड. क्या प्रिकॉशन रखने चाहिए वैल्यू एडेड. फर्स्ट, नेट इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ इन्वेंट्रीज शुड बी इंक्लूडेड. आपको पता है चेंज इन स्टॉक हम उसमें इंक्लूड करेंगे. नेट इंक्रीज इन स्टॉक यानी वो कैसे ले लेंगे आप लोग, ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक. नेक्स्ट, वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजप्शन. एग्जांपल, एग्रीकल्चरल आउटपुट हुआ रिटेन फॉर सेल्फ कंजप्शन बाय द फार्मर. सपोज दैट फार्मर ने प्रोडक्शन किया वीट का और उसने अपने पास रखा, बाकी मार्केट में सेल कर दिया. जो उसने अपने पास रखा है फॉर सेल्फ कंजप्शन वो भी नेशनल इनकम में ही काउंट होगा. यू कैन सी वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजप्शन retained for self consumption by the farmer should be included in the estimation of national income. इट इज क्लियर टू स्टूडेंट. मैंने दो बताया, एक तो जो स्टॉक इंक्रीज हो रहे हैं वो भी हम काउंट करेंगे, दूसरा जो सेल्फ कंजप्शन के लिए रखा जाता है प्रोडक्ट वो भी हम काउंट करेंगे. थर्ड वन, ऑन अकाउंट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ फिक्स असेट्स बाय ऑल द प्रोड्यूसर एंटरप्राइज शुड बी इंक्लूडेड. यानी अपनी जो कैपिटल लगा रहे हैं हम उसको भी नेशनल इनकम में काउंट करेंगे, प्रोड्यूसर जो अपनी कैपिटल लगा लेता है. नेक्स्ट वन, वैल्यू ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड बाय द हाउस वाइफ इन द हाउस होल्ड आर नॉट इंक्लूडेड. हाउस वाइफ का जो वर्क होता है उसको जीडीपी में काउंट नहीं करते, बिकॉज इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कैलकुलेट असाइन द करेक्ट वैल्यू ऑफ देयर सर्विस. यानी हम बता नहीं सकते कि उसने कितना किया, ये टिपिकल होता है, तो इसलिए इकोनॉमिस्ट ने इसको बाहर निकाल रखा है. हाउस वाइफ का वर्क को हम जीडीपी में काउंट नहीं करते हैं. गेटिंग. नेक्स्ट वन, सेल्स एंड परचेज. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार आता है. सेल एंड परचेज ऑफ सेकेंड हैंड goods should not be included because it does not enter into the current years. You can see students, you can listen.
जो भी सेकेंड हैंड गुड्स होती हैं, सेल एंड परचेज होती हैं, उनको हम काउंट नहीं करते। क्यों? सपोज दैट एक कार है, वो इस साल सेल हो रही है, तो वो इस साल का प्रोडक्शन ना होकर बेटा किसी पुरानी ईयर का है, वो उस साल के जीडीपी में काउंट होगा, वो उसको हम जीडीपी में काउंट नहीं करेंगे। तो जितनी भी सेकेंड हैंड गुड्स हैं वो जीडीपी में काउंट नहीं करेंगे। बट हियर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हाउएवर ब्रोकर कमीशन अर्न बाय द डीलर सेकेंड हैंड गुड्स शुड बी इंक्लूड। सपोज दैट उसको बनाने में उसको सेल कराने में कोई ब्रोकर है गेटिंग, और उसको कमीशन मिला है, वो कमीशन किस साल की जीडीपी में काउंट होगा? इसी ईयर की जीडीपी में, बिकॉज इट इज द इनकम फॉर दिस ईयर जीडीपी। गेटिंग? यानी गुड्स को सेल हो रहे हैं सेकंड हैंड, तो गुड्स की वैल्यू को काउंट नहीं करेंगे क्योंकि वो तो उस साल हो चुकी है जब जिस साल वो बनी थी। बट जो ब्रोकर का कमीशन है वो इस साल जनरेट हुआ है, इसलिए उसको जीडीपी में काउंट करेंगे। लास्ट वन, वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड, ये आपको पता है, शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन द मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम बिकॉज इट अमाउंट्स टू डबल काउंटिंग। यानी देखो इंटरमीडिएट गुड्स हम नेशनल इनकम में काउंट नहीं करते हैं। सो स्टूडेंट, ये प्रिकॉशन थे और ये आपको बहुत ध्यान से रखना है। जब भी उसने इस टाइप का डाटा दे रखा होगा, आप इसको काउंट जीडीपी में नहीं करेंगे। आई होप इट इज क्लियर टू स्टूडेंट्स, एंड इन नेक्स्ट वीडियो जब भी आपका टर्म होगा, हम वैल्यू एडिड मेथड के न्यूमेरिकल्स कराऊंगा मैं। उससे पहले आप इनको अपनी कॉपी में करेंगे। आई होप आप लोग जितना भी मैं पीडीएफ सेंड कर रहा हूं कॉपी में कर रहे होंगे, और 2-3 बार रिवाइज करना फॉर्मूलों को कि कैसे क्या बनता है। देन आफ्टर यू कैन इजिली अंडरस्टैंड वैल्यू एडिड। 6 मार्क्स में स्टूडेंट जरूर 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 आएगा। 3 मेथड है आपके मेजरमेंट के, नेशनल इनकम मेजरमेंट, वैल्यू एडिड मेथड, इनकम मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड। तो पहले वैल्यू एडिड मेथड के मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा आपको नेक्स्ट वीडियोज में। Okay students, thank you so much.